دوستوں، میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا تھا جو شاید میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ ایک ایسا دن جو عام سا لگتا تھا، لیکن اس نے میری پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کبھی تنہا سفر نہیں کیا۔ یہ واقعہ سن 2018 کا ہے، جب میں نوکری کے سلسلے میں اندرون پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں جا رہا تھا۔ گرمی کی شدت حد سے زیادہ تھی اور راستہ بہت سنسان تھا۔ میں موٹر سائیکل پر تھا، راستہ بھی نیا تھا اور نیٹ ورک بھی بار بار غائب ہو رہا تھا۔ میرے بیگ میں کھانے کا ٹفن تھا اور پانی بھی میرے ساتھ تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کوئی سایہ دار جگہ ملے تو آرام کر لوں۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک پرانا سا درخت نظر آیا۔ وہ ایک پیپل کا درخت تھا، سڑک سے تھوڑا ہٹ کر۔ درخت کے نیچے گھاس تھی، سایہ بھی گہرا تھا اور وہاں ہوا بھی ٹھنڈی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل سائڈ پر لگایا، بیگ کھولا، پانی پیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ لیکن جیسے ہی میں نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے گھور کر دیکھا ہو۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ گرمی میں میرا وہم ہوگا اور کھانے میں مصروف ہو گیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ایک عجیب سی بے چینی میرے اندر پھیلنے لگی، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ اور پھر اچانک میرے دائیں کان کے پاس ایک آواز آئی، بالکل مدھم مگر واضح آواز، تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹا، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ نوالا جا کر زمین پر گر گیا۔ میری سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ اب میں اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ درخت کے پیچھے کچھ ہلتا ہوا نظر آیا، بالکل جیسے کسی نے جھانک کر دیکھا ہو اور فوراً چھپ گیا ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید بندر یا جانور ہوگا، مگر سچ بتاؤں تو میرے اندر کوئی نہ کوئی بات کہہ رہی تھی کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تیزی سے کھانے کے برتن سمیٹے اور موٹر سائیکل کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا تو اس کی آواز کچھ عجیب سی ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے اس میں سے کوئی کراہنے کی سی آواز آ رہی ہو۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ موٹر سائیکل اچانک خود بخود بند ہو گیا اور درخت کے نیچے سے ایک سایہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے وہ سایہ صاف تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ وہ کسی انسان جیسا ہی تھا، لمبا قد، جھکی ہوئی گردن اور بہت دھیمی رفتار۔ میں اس کی طرف چیخا، کون ہے، سامنے آؤ، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ بس وہ سایہ رک گیا اور زمین کی طرف جھکتا چلا گیا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بھاگوں یا اسے دیکھوں۔ میں بار بار موٹر سائیکل کا کک مار رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ یہ سٹارٹ ہو جائے، مگر موٹر سائیکل جان بوجھ کر سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک اس درخت کے اوپر سے پرندے چیختے ہوئے اڑے، لیکن یہ عام پرندوں جیسی آواز نہیں تھی۔ یہ آوازیں جیسے کسی عورت کے رونے اور کراہنے جیسی تھی۔ میرے بدن پر جرجری سی آ گئی۔ میں نے آخری بار کوشش کی اور موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گیا۔ بغیر پیچھے دیکھے میں نے موٹر سائیکل دوڑا دیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جب میں سڑک پر آیا اور پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہ سایہ اب درخت کے نیچے نہیں تھا۔ گاؤں پہنچ کر میں نے وہاں ایک پرانے چوکیدار سے بات کی۔ میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا، بابا جی، وہ سڑک کے کنارے ایک پرانا پیپل کا درخت ہے، اس کے نیچے تھوڑی دیر میں بیٹھا تھا تو آج مجھے عجیب لگا، وہاں کچھ تھا۔ بابا جی کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا، ان کی نظریں کہیں دور دیکھنے لگی۔ انہوں نے بس ایک ہی بات کہی، بیٹا، اس درخت کے نیچے کوئی بھی دوپہر کے وقت نہیں بیٹھتا، نہ کھاتا ہے نہ رکتا ہے، وہاں کوئی چیز ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے، کیا چیز ہے؟ بابا جی نے ایک گہرا سانس لیا اور بولے، 15 سال پہلے ایک مزدور وہیں دوپہر کو بیٹھا تھا کھانا کھانے کے لیے، پھر کبھی واپس نہیں آیا، اس کے صرف جوتے اور ایک خالی ٹفن ملا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس رات میرے دروازے پر کسی نے 3 بار دستک دی اور دروازے کے نیچے سے وہی آواز آئی، تمہیں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ میں ڈر کے مارے کمرے کے کونے میں جا بیٹھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، بس موبائل کی مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ میری سانسیں اتنی تیز تھی کہ خود کو سنائی دے رہی تھی، اور تبھی دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور اس بار آواز آئی، دروازہ کھولو، واپس لے کر جانا ہے۔ یہ سن کر میرے حواس مکمل جواب دے چکے تھے۔ میں نے موبائل کا فلیش آن کیا، دروازے کی طرف روشنی ڈالی اور دیکھا تو دروازے کے نیچے کسی کے پاؤں کے نشان تھے، لیکن ان میں انگلیاں نہیں تھی، بس سیاہ دھندلے سائے جیسے نشان تھے۔ میں نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کی اور کانوں میں انگلیاں ڈال دی، لیکن کچھ لمحوں بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ لیکن کمرے کی فضا جیسے کسی نے جلا دی ہو، ہوا رک گئی تھی اور ایک بدبو سی پھیل گئی تھی، ایسی بدبو جیسے کئی دن پرانی لاش سے آتی ہو۔ پھر صبح ہوتے ہی میں گاؤں کے امام صاحب کے پاس گیا۔ میں نے سب کچھ انہیں لفظ بہ لفظ سنا دیا۔ انہوں نے گہری خاموشی کے بعد کہا، وہ درخت جنات کا مسکن ہے اور تم نے غلطی کر دی کہ وہاں کھانا کھایا۔ یہ ان کی جگہ ہے، وہاں کسی کو رکنے کی اجازت نہیں۔
जो भी वहाँ बैठता है या तो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। मैंने घबरा कर पूछा, अब मैं क्या करूँ? वो आवाज़ें मेरे पीछे आ चुकी हैं। इमाम साहब ने कहा, अब तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उस जगह जाकर उनसे इजाज़त लेनी होगी कि तुम लाइलम थे, वरना ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने अगले दिन रोज़ा रखा, नमाज़ें पढ़ी, कुरान की तिलावत की और तैयारी की कि दोबारा उस दरख्त के नीचे जाऊँगा। ये पागलपन था, लेकिन शायद यही वाहिद रास्ता था। शाम होने से पहले ही मैं उस जगह पहुँचा। दरख्त अब भी वैसा ही था, खामोश, सायादार और मुकम्मल सुनसान। मैंने उस दरख्त के नीचे बैठकर आंखें बंद की और बुलंद आवाज़ में कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि ये जगह आपकी है। मैं लाइल्मी में यहाँ बैठा खाना खाया, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे पीछे छोड़ दीजिए। तभी अचानक दरख्त से एक आह निकली, जैसे कोई बूढ़ा रो रहा हो, और उसके बाद ज़मीन हल्की सी कांपने लगी। मैं फ़ौरन उठा और पीछे मुड़े बगैर भाग आया। मैं वापस आया और कई दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। ना कोई ख्वाब, ना आवाज़, ना साया। मैं समझा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन एक दिन मैंने अपने बैग के अंदर वही नवाला पाया जो मैंने उस दिन दरख्त के नीचे ज़मीन पर गिराया था, जो अभी भी बिल्कुल ताज़ा, गर्म और खून में भीगा हुआ था। और वो नवाला जैसे मेरे हाथों में सांस ले रहा हो, जैसे अभी भी ज़िंदा हो। मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की, फ़ौरन उसे कचरे में फेंक दिया। मगर अगली सुबह वो फिर वही था, उसी जगह, उसी हालत में। मैं समझ चुका था कि माफ़ी काफ़ी नहीं थी। कुछ है जो ख़त्म नहीं हुआ, कुछ है जो उस दिन के बाद मुझसे जुड़ गया है। मैंने मौलवी साहब को दोबारा जाकर सारी बात बताई। उन्होंने खामोशी से एक पुराना रुमाल निकाला और मुझे दिया और कहने लगे, इसके अंदर मिट्टी है, वही दरख्त के नीचे वाली जगह की मिट्टी। जब तक तुम इसे अपने साथ रखोगे तो वो चीज़ें तुम्हें मुकम्मल नहीं ले जा सकेंगी। मगर एक दिन आएगा जब वो तुम्हें दोबारा बुलाएंगे और उस दिन फैसला होगा कि तुम बचोगे या नहीं। मैं हैरान रह गया कि यानी कि ये सब कुछ अभी फ़िलहाल के लिए रोका है, ख़त्म नहीं हुआ। वो मिट्टी मुझे अपने पास रखने के बाद कई महीने गुजर चुके थे। ज़िंदगी मामूल पर आने लगी, लेकिन बाज़ रातें अब भी ऐसी होती हैं जिनमें मुझे दरख्त की शाखें अपने बिस्तर के इर्द गिर्द महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे दरख्त मेरे कमरे के अंदर आ गया हो। एक रात मैं नींद से हड़बड़ा कर उठा तो मेरे गले में जैसे कोई चीज़ लपट गई हो। मेरी आंख खुली तो कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन खिड़की के बाहर दरख्त की एक शाख हवा में लहरा रही थी, बगैर किसी दरख्त के। मैंने फ़ौरन वो रुमाल निकाला, सीने पर रखा और बेहोश हो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं ज़मीन पर पड़ा था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो रुमाल गायब था। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मेरे व्हाट्सएप पर एक नामालूम नंबर से वीडियो आई। वीडियो में वही दरख्त था और उसके नीचे कोई खाना खा रहा था, जैसे मैंने पहली बार वहाँ खाया था। मगर कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के चेहरे पर आया और वो मैं ही था। फिर मैं सोचने लगा कि मैं कहीं दोबारा वहाँ गया था क्या, या वो कुछ और था। और फिर जब मैंने वो वीडियो पूरी देखी तो उस वीडियो के ख़त्म होने में, यानी कि उस वीडियो के लास्ट में एक आवाज़ आई, तुम्हारी माफ़ी कबूल हो चुकी है, तुम्हें आज़ाद कर दिया गया है। और उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी वापस मामूल पर आ गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये थी उस दिन की कहानी जब मैंने गलती से उस दरख्त के नीचे खाना खाया। ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी नंबर 1। चलते हैं अपने दूसरी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे आपको कोई देख रहा हो पर आपके इर्द गिर्द कोई ना हो? ये वो जुमला है जो मैंने पहली बार तब सुना जब मैं खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गांव गुरजारा गया। असल में ये सिर्फ एक दूर दराज पहाड़ों के बीच छुपा हुआ पुरसुकून गांव लगता है, लेकिन रात की तारीकी जैसे ही छाती है तो ये गांव अपनी असलियत दिखाने लगता है। और मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा जो शायद आप यकीन ना करें। मेरा नाम असद है, मैं पेशावर में रहता हूँ। और ये कहानी सुनाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कमज़ोर दिल रखते हैं तो ये कहानी मत सुने, क्योंकि ये सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की चीज़ है। ये सन 2022 की बात है जब मेरे मामू का इंतकाल हुआ। मेरे मामू गुरजारा गांव में रहते थे, एक छोटा सा गांव जो पेशावर से तकरीबन 4 घंटे दूर है। मामू की वफ़ात पर हमें गांव जाना पड़ा, और चूंकि उन्हें दफनाने के बाद सब लोग वापस आ गए थे, मैंने सोचा कि चंद दिन वहीं रहकर मामू के घर की देखभाल कर लूँ। ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मामू का घर गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर वाक़िया था। एक पुराना सा लकड़ी का 2 मंजिला मकान था। उसके सामने एक पुराना बरगद का दरख्त था जिसके बारे में गांव के लोग कुछ भी बात करने से कतराते थे। पहली रात तो कुछ खास नहीं हुआ, बस सन्नाटा और पहाड़ी हवाओं की सरसराहट। लेकिन दूसरी रात, आधी रात को मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई दरवाजे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने सोचा कि शायद बिल्ली होगी, पर कदमों की रफ्तार इंसानी लग रही थी। मैंने खिड़की के पर्दे की ओट से बाहर झांक कर देखा तो बाहर कुछ नहीं था।
अभी मैं पलटा ही था कि एक अजीब सी सरगोशी मेरे कान में गूंजी, घर खाली नहीं है। मैं काम गया और फ़ौरन कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन बिजली चली गई थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं गांव के मौलवी साहब के पास गया और सब कुछ उन्हें बताया। वो चंद लम्हे चुप रहे और फिर बोले, ये जगह पहले भी कई लोगों को बुलाती रही, कुछ वापस आए और कुछ नहीं। मैंने उनसे मज़ीद पूछा, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब बरगद की जड़ों से आवाज़ें आना शुरू हो जाए तब देर हो चुकी होती है। उस रात मैंने तय किया कि रिकॉर्ड ऑन रखूँगा और सब कुछ नोट करूँगा। मेरे पास एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डर था जो मेरे मामू का था। मैंने रात 12 बजे उसे खिड़की के करीब रख दिया, तो अगली सुबह जब मैंने उसे सुना तो मेरी सांसें थम गई, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में दरख्तों की जड़ों से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई औरत थी ही नहीं। और उससे अगली रात भी रात के किसी टाइम दरवाजे का दरवाज़ा एकदम अचानक खुद से खुल गया। वो दरवाज़ा खुलने से मैं नींद से जाग गया। मैं उठा, टॉर्च ली और दरवाजे से बाहर जाने लगा कि देखूं कि ये दरवाज़ा किसने खोला है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास गया और जैसे ही बाहर कदम रखा तो ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। दरख्त के नीचे कुछ हरकत हो रही थी। मैंने टार्च उस दरख्त की तरफ की तो वहाँ कुछ था, एक साया जैसा झुका हुआ, जैसे ज़मीन खोद रहा हो, जैसे किसी चीज़ को निकालने की कोशिश में हो। लेकिन जैसे ही रोशनी मैंने उस पर लगाई तो वो शे फ़ौरन रुकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ पलटी। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ आंखें थी जो बिल्कुल सुर्ख आंखें थी। वो चीज़ देखकर मैं जैसे पत्थर बन गया, जैसे मेरे बदन ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। और फिर बगैर कुछ कहे वो साया बरगद के दरख्त की जड़ों के अंदर गायब हो गया, ऐसे जैसे ज़मीन ने उसे निगल लिया हो। अगली सुबह बरगद के नीचे एक छोटा सा कब्र नमा उभार था और उसके ऊपर मामू का पुराना रुमाल पड़ा था जो हमने उनकी कब्र पर छोड़ा था। मैं सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। क्या कोई उनकी कब्र से कुछ निकाल कर यहाँ ले आया, या क्या मामू खुद वापस आए। मैं तेज़ी से मौलवी साहब के पास गया। वो मुझे एक तरफ ले गए जैसे कोई राज बताने वाले हो, और उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, यह गांव पहले आबाद नहीं था। ये जगह पुरानी खानक़ाह थी जहाँ कुछ दफन किया गया था। जो भी इस जगह कुछ दिन से ज़्यादा ठहरता है उसे वही साया देखता है, और जो रात को बरगद के नीचे कुछ देख ले वो फिर कभी मुकम्मल इंसान नहीं रहता। मैंने उनसे पूछा, क्या मामू ने भी वही साया देखा था? मौलवी साहब की नज़रें झुक गई और वो बोले, हाँ, तुम्हारे मामू ने आखिरी दिनों में यही कहा था कि कोई उन्हें रात को आवाज़ें दे रहा है और वो जाकर उससे मिलेंगे। फिर मैं मौलवी साहब के पास से वापस घर लौट आया, और फिर इसी रात जब मैं सोने गया तो मेरे तकिए के नीचे से एक पर्ची निकली जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था कि तुम अभी अगले बंदे हो। उस पर्ची को देखने के बाद मैंने उसी वक्त गांव छोड़ने का फ़ैसला किया। सुबह होते ही मैंने अपना बैग पैक किया, लेकिन जाते वक्त एक आखिरी बार मामू के कमरे में जाना चाहा कि शायद उनकी कोई चीज़ रह ना गई हो। जब मैं उनके कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो खिड़की के सामने रखा आईना खुद ब खुद ज़मीन पर गिर गया, पर वो टूटा नहीं, बस लड़क कर बिल्कुल मेरे कदमों के पास आ गया। मैंने आईने में झांक कर देखा और पहली बार खुद को नहीं किसी और को वहाँ खड़ा पाया। वही दुखती आंखें, वही स्याह साया जो बरगद के नीचे देखा था, वो अब मेरे पीछे खड़ा था। मैं पीछे पलटा तो पीछे कुछ नहीं था, पर आईने में वो अभी भी मुझे घूर रहा था। मेरे चेहरे पर पसीना बहने लगा। मैंने फ़ौरन आईना दीवार के रुख कर दिया और कमरा बंद कर दिया। जैसे ही बाहर निकला तो एक छोटा बच्चा मेरे सामने आ खड़ा हुआ, वही बच्चा जो मौलवी साहब का बेटा था। उसने खामोशी से मेरी तरफ देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, वो अब तुम्हारे साथ है चाचू। वो सिर्फ गांव में नहीं रहता, वो जिसे चुन लेता है उसके साथ चलता है। फिर मैं अपना बैग वगैरह लेकर गांव से निकल आया, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। मैं जब पेशावर वापस आकर मैंने सब कुछ भूलने की कोशिश की, पर सच तो ये है कि बरगद के साए अब मेरे ख्वाबों में उतर चुके थे। हर रात एक ही ख्वाब आता, मैं बरगद के नीचे खड़ा होता, ज़मीन मुझे अंदर खींच रही होती और वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा होता और मुझे कहता, अब तू बच नहीं सकता। एक दिन मैंने ख्वाब में चीख कर आँख खोली तो मेरे हाथ में कुछ था, वही पर्ची जो गांव में मुझे मिली थी। हालांकि मैं वही छोड़ आया था उसे, पर इस बार उस पर कुछ और लिखा था। उस पर लिखा था, तुम्हारी बारी पूरी हुई, अब उसे किसी और को देना है वरना वो तुम्हें ले जाएगा। अब सवाल ये था कि क्या मैं किसी और को वो साया दे सकता था? क्या मैं जानबूझकर किसी और की बारी ला सकता था, या क्या मैं भी उसी ज़मीन का हिस्सा बनने वाला था जैसे मामू बने? फिर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे वो पर्ची किसी और को देनी होगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो साया, वो बरगद के दरख्त की मिट्टी जैसा काला सच, वो मुझे निगल लेगा।
2 दिन 2 रातें मैं पेशावर की गलियों में पागलों की तरह घूमता रहा। किसी को देखता तो सोचता इससे दे दूं, लेकिन फ़ौरन मेरा ज़मीन चीख उठता कि नहीं। फिर वही पुराना दोस्त जो यूनिवर्सिटी के दिनों मेरे साथ रह चुका था, जिसका नाम कामरान था, वो मुझसे मिलने आया। बेखबर मासूम, बस एक पुराना ताल्लुक़ निभाने। हम चाय पर बैठे तो मैंने उसकी हंसी देखी, उसकी खुशी, और अचानक मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि यही वक्त है। तभी मैंने जेब से पर्ची निकाली, मुट्ठी में दबाकर उसकी जेब में चुपके से रख दी, और फिर कुछ देर गपशप के बाद हमारी मुलाकात ख़त्म हुई और वो चला गया। उस रात पहली बार मैंने ख्वाब नहीं देखा। कमरा ठंडा था, खामोश था, आईना बस मेरा अक्स दिखा रहा था। वो साया जैसे किसी और के साथ जा चुका था। और 2 दिन बाद कामरान की कॉल आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो कहने लगा, यार वो जो तुमने दिया था उस पर कुछ लिखा था, पर जब मैंने पढ़ा तो वो जुमला बदल गया था। मैंने पूछा क्या लिखा था? वो चुप हो गया और फिर बहुत देर बाद बोला, उस पर लिखा था कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है, अब तुम्हारा दोस्त भी जाएगा और तुम भी जाओगे। मैंने फ़ौरन उसे समझाया कि ये सब तुम्हारा वहम है, पर अंदर से मैं कांप चुका था। शाम को मैंने कामरान के घर फ़ोन किया तो उसकी माँ ने कहा कि वो तो दोपहर से गायब है और सिर्फ़ एक कागज़ छोड़ कर गया है। मैंने वो कागज़ उसकी अम्मी से मंगवाया। जब मैंने देखा तो हैरत से मेरी आंखें फैल गई, क्योंकि वो वही पुरानी पर्ची थी जिस पर उस बार लिखा था कि अब तुम्हारी आखिरी बारी है। मैंने उसी रात ट्रेन पकड़ी और अपने मामू के गाँव वापस चला गया। जब मैं उसी बरगद के दरख्त के पास पहुंचा तो ज़मीन वैसे ही थी, पुरानी, नम, जैसे किसी को पुकार रही हो। मैंने पर्ची ज़मीन में दफन की और ख़ुद चुपचाप उसके सामने बैठ गया। और फिर कुछ देर बाद एक साया जो ज़मीन से निकला मेरे सामने आया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर उतर गया। जैसे ही वो मेरे अंदर उतरा तो मुझे एक झटका लगा और मैं वापस पेशावर वापस आ गया। उस दिन के बाद आज 10 साल हो गए हैं। मैं ज़िंदा हूँ पर जी नहीं रहा। हर रात कोई मेरी खिड़की पर दस्तक देता है और जब मैं आईने में देखता हूँ तो मेरा अक्स मुझे नहीं पहचानता, बल्कि वो मेरा अक्स होता ही नहीं, किसी और का अक्स होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 हॉरर स्टोरीज़। आपको हमारी कौन सी स्टोरी सबसे खौफनाक लगी कमेंट वाली सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई आने वाली हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।